محسن جمیل بیگ صاحب، ہمت، عزم اور حوصلے کی پہچان۔ بیگ صاحب جنہوں نے صحافتی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے جھکنے اور بکنے کے بجائے مقابلہ کرنے کو ترجیح دی۔ نیوز ون ٹی وی کے ایک پروگرام میں حکومتی کارکردگی پر تنقید کی، حکومت نے نیوز ون ٹی وی کو بند کر دیا۔ پھر محسن بیگ کی آواز بند کرنے کے لیے حکومت وقت نے انتقامی کارروائی کی اور ان کی گھر پر حملہ کر کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جیل میں بھی ناروا سلوک کا سامنا رہا، تشدد کا سامنا رہا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن زخم زخم چہرے پر ان کی دل جلانے والی ایک مسکراہٹ والی تصویر آپ سب کو یاد ہوگی۔ تو ان کے زخم زخم چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ پہلے ہی بوکھلائے ہوئے اور ہارے ہوئے مخالفین کو یقیناً دیر تلک یاد رہے گی۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں انوائٹ کروں گی محسن جمیل بیگ صاحب کو۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ میرے سے پہلے بہت ساری تقاریر ہوئی، محترم بٹ صاحب نے، جہانگیر صاحب نے، صاحب نے، تو میں بیسیکلی چاہتا تھا کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں، اور مجھے دشواری ہو رہی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے آپ سب کا شکریہ بیسیکلی حالات تو کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی خراب، لائف اسی چیز کا حصہ ہے، زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ انہوں نے میسیج بھجوانے شروع کیے کہ معافی مانگ لیں اور زبان بند رکھیں، تو معافی تو میں اللہ سے روز 100 بار مانگتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ میں نے کسی انسان سے غلطی نہ کی ہو۔ مجھ پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس ہوا، افتخار چودھری صاحب جو اس وقت بالکل سمجھتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب قریب ہوں، حالانکہ اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے میرے دفتر میں آئے کسی دوست کے ساتھ، انہوں نے کہا میرا نوٹیفیکیشن چیف جسٹس کا 2-3 مہینے پہلے کروا دے۔ میں نے کوشش کی لیکن مشرف صاحب نہیں مانے، بعد میں وہ لگ گئے۔ اب جب وہ ان کے بیٹے کا کیس آیا تو انہوں نے کنٹمپٹ لگا دی۔ بہت پریشر تھا میرے پہ کہ جی آپ سوری کر لیں، ریگریٹ کر لیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ آپ کوئی ایسا لفظ چن لیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ معافی صرف بندہ 2 وجہ سے مانگتا ہے، ایک تو آپ نے غلطی کی ہو، میں نے کی ہو، میں بالکل معافی مانگتا ہوں، دوسرا معافی مانگی جاتی ہے ڈر کے، تو میں نے کہا یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ تو اب بھی جیسی سچویشن چل رہی تھی، مجھے 3-4 ماہ سے میسیجز آ رہے تھے، تو صدیق صادق کو ایک شخص نے بتایا، میرے شہر کا ہی ہے، اور میرے در پہ ہی تھا کہ مجھے وزارت لے کے دو، میں نے لے بھی دی۔ تو اس نے کہا جی آپ ملک چھوڑ دیں، خاموش رہیں، تو میں نے کہا اس کی بات کا تو کیا مطلب یہ کیا میسیج دے سکتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ جی جب آپ
सच्चाई पे बात करते हैं तो बहुत से लोग, मतलब एक शख्स आपके मुंह पे झूठ बोले और सच्चाई को डिनाई कर दे, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हकायक अपनी जगह मौजूद रहते हैं। और ये जो सहारों से वजारतें और प्राइम मिनिस्टर बनना, ये मैं 32 साल से देख रहा हूँ, कोई बात बुरी भी नहीं है, लेकिन इस शख्स ने इसका साथ देना, मुझे बहुत लोगों ने ये कहा कि आपका कसूर है, आप इसको, आपने मदद की है, जो भी मैंने किया। तो मैं उस तब्दीली के चक्कर में था। मैं इस मुल्क में अपने बच्चों के मुस्तकबिल, इस मुल्क की खातिर मैंने कहा शायद तब्दीली हो, मेरा मुल्क बदल जाए और ये स्टेटस को खत्म हो, एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो। लेकिन ये शख्स इतना टैक्टफुली उसने हम सबको, जितने वोट देने वाले हैं आप देख लीजिए, कोई ऐसी बात उसने की हो जो पूरी की हो, तो उसमें मैं भी एक था जो इसके बहकावे में आया। लेकिन मैंने 2 साल पहले जब पूरा पैटर्न इनका एनालाइज किया तो मैं समझा कि ये किसी और पैटर्न पे हैं और ये मुल्क हमारा डुबो देंगे। और मैंने एक टीवी चैनल पे समा पे कौम से माफी भी मांगी और मैंने कहा आज के बाद मैं इनका साथ नहीं दूंगा। और मैंने इनको मैसेज करके, वो फोन मेरा FIA देखी, वरना मैं आपको दिखाता कि वो मैसेज हुकूमत वक्त को शायद दुनिया में कोई कर सकता हो जो मैंने किया। और उसके बाद मैंने आज तक उसका मोबाइल नंबर खोला नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम बहुत फ्रीक्वेंटली बात और मैसेजेस एक्सचेंज करते थे। अब ये जो सिचुएशन उस दिन मेरे घर में हुई, मैं सोया हुआ था, जब चीखों पुकार सुनी घर वालों की तो मैं एकदम उठा। तो मुझे काफी दिनों से थ्रेट थी, तो मैंने वेपन उठाया, मैं नीचे आया। अब मैंने देखा बाहर आके कि कुछ लोगों ने कहा जी वेपन क्यों लिया, क्यों उठाया। देखिए मैं सहाफत में हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं घर का सरबराह भी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मैं उनका मुहाफिज भी हूँ। अगर कोई शख्स या रियासत पाकिस्तान मुझे ये हक देती है कि मैंने अपने आप को, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, और उसी रियासत पाकिस्तान ने मुझे लाइसेंस दिया है वेपन रखने का, प्रोटेक्शन का। अगर मेरे घर में बगैर वारंट, बगैर FIR, सिविल ड्रेस में कोई शख्स इंटर होगा तो मैं वो हक इस्तेमाल करूंगा। वो गन मैंने दीवार पे लगाने के लिए नहीं रखी, वो लाइसेंस मैंने माथे पे नहीं लगा के रखना। रियासत ने मुझे अपने आप को डिफेंड करने के लिए दिया है। मैंने मीडिया में देखा जी गन निकाल ली, तो मैं और क्या करता। जिनको गोलियां लगी हैं, जो लोग शहीद हुए सहाफी, हमने ठीक है ताजियत की, रेफरेंस निकाला, थोड़ा सा एहतजाज किया, लेकिन उनके बच्चों से पूछिए जो यतीम हो गए, उनकी बेवा से पूछिए कि वो बेवा हुई है और उनकी जिंदगी कैसे है। यतीम जिंदगी गुजारना यतीम ही बता सकता है, कोई और नहीं बता सकता। बगैर बाप के जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है। तो ये कहना कि जी हमें आए, गोलियां चलाएं, मार जाएं, तो क्या इनका भी मकसद मुझे उठाना या गिरफ्तार करना नहीं था। गिरफ्तार करना उस केस में जो बाद में रजिस्टर किया उसमें तो 1 घंटे में बेल होती है। और अगर ये वैसे भी मुझे फोन करते मैं आ जाता, आप मुझे हैंडकफ कर लेते और मैं बैठ जाता। मेरे घर में आने का मकसद इनका कुछ और था, वो आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और सोच रखा था। वो इनका तो सारा प्रोग्राम धरा का धरा रह गया। और जब मैं पुलिस स्टेशन गया, जो उन्होंने मेरे साथ किया, तो मैं खान साहब की परेशानी देख रहा था, क्योंकि जिस तरीके से वो मैसेज कर रहे थे, तो मैं बड़ा, जो उन्होंने किया, मैंने उनको कहा कि आप मेडिकल भी ना करें, आप 15 दिन का रिमांड भी ले लें, जो दिल आता करें, लेकिन इस वक्त का इंतजार करना जब मेरी बारी आएगी। मैंने खुद से तो कभी ज्यादती की नहीं किसी से, लेकिन मैंने अपने साथ कभी ज्यादती होने ही नहीं दी।
اور میں इनको एग्जाम्पल बनाऊंगा इंशाल्लाह, आप देखिएगा, ताकि आज के बाद मैंने भट्ट साहब को इसलिए कहा कि ऐसा कानून होना चाहिए प्रेस क्लब के लिए पूरे पाकिस्तान में, आपकी एसोसिएशन यूनियंस, ताकि अगर आपको किसी सही जेन्युइन सहाफी से कोई शिकायत है, आप इनसे रुजू कीजिए, यहाँ बुला लीजिए, यहाँ से हैंडकफ कर लें अगर आपके पास कोई केस है। क्योंकि किसी के घर में जाना, इस तरीके से उसकी फैमिली और बच्चों को थ्रेटन करना, आप देख लीजिए हर एसोसिएशन को ये पहले बताते हैं कि जी हमने आपके लॉयर को बुलाना है, अरेस्ट करना है, तो हमारे साथ क्यों नहीं? तो मैं चाहता हूं कि ये मैं बिल पास करवाऊं, और अगर आपको हमसे शिकायत है, आपने FIR काट ली है, साहबी कहाँ भाग के जाएगा? मैं नहीं समझता कि आज तक हिस्ट्री में कुछ मैंने देखा हो साहबी के खिलाफ पर्चा और वो लंदन भाग गए। और प्रॉब्लम ये उस दिन भी जब ये सारा वाक्य हो गया, पुलिस हमने बुलाई, मालिक साहब भी वहां थे, मेरे लॉयर भी वहां थे, और मेरे कुछ दोस्त भी थे, उन्होंने कहा आप साइड पे हो जाए, आप अरेस्ट ना दें। मैंने कहा नहीं, मैं जिंदगी में भागा नहीं, मैं फेस करूंगा, और मैंने फेस किया। ये जितनी भी गुफ्तगू खान साहब मैसेजिंग कर रहे थे, मैं सारे दोस्तों का शुक्रिया तो अदा कर रहा हूँ, लेकिन जो लोअर पुलिस थी, जो इस्लामाबाद की लोअर पुलिस है, उससे बड़ा साथ दिया, उन्होंने कोई बात नहीं किया। इतने प्रेशर के बावजूद जो उनके ऊपर IG और ये SSP, मैं उस दिन सोच रहा था, मैंने बड़ा गौर किया, मेरी दोस्ती भी बहुत है लोगों से, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये किस किस्म के पढ़े लिखे लोग हैं। एक टेलीफोन कॉल PM हाउस से आई और नक्शा बदल गया, और ये इन्होंने इस तरीके से बिहेव शुरू किया। थोड़ी सी डिसेंसी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको कानून के ऊपर और अपने अंदर एक करेज होनी चाहिए कि आप गलती को, गलत आदर्श को ना माने। और उन्होंने जिस तरीके से FIA को लॉक किया मेरे ऊपर तशद्दुद के लिए, और SSP साहब बाहर करके, और पूरा थाना बाहर था और मैं थाने के अंदर, FIA मुझे तशद्दुद कर रही है। और फिर मैं हैरान हूँ कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी भी फैमिली कोई होगी, इनके भी बीवी बच्चे होंगे, ये उनको शक्ल क्या दिखाते होंगे? और मैं तो हैरान हूँ, फिर अपने आप को मर्द भी कहते हैं, ठीक है? सिर्फ क्या है, पोस्टिंग ट्रांसफर्स, और जो एक्शन इन्होंने उस दिन किया, मेरी यकीन कीजिए सोच बदल गई। मैं कभी नेगेटिव नहीं रहा लाइफ में, मैंने हमेशा पॉजिटिव लाइफ गुजारी है। मेरा ईमान है, मेरे पास कोई आ जाए मैं उसका काम करता हूँ, लेकिन इस केस में मैंने सोचा कि नहीं, मैंने इनको एग्जाम्पल बनाए बगैर मरूंगा नहीं, और जो मेरे पास है मैं मैं चाहता हूँ कि मैं इनको, दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, मैं हर कानूनी रास्ता, और ये चंद दिनों में आपको दिखाऊंगा, एग्जाम्पल बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ आइंदा किसी जर्नलिस्ट के साथ उसकी सच्चाई के ऊपर ऐसा वाकया ना हो, उसकी फैमिली सफर ना करे जो मैंने किया, और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला कानून भी होगा। मैं उसके ऊपर भट्ट साहब को मैंने कहा, आप सब मिलके बैठ के बनाएं, उसको पास करवाना दोनों जगह से, वो मेरा काम। मैंने भट्ट साहब 17 दिन या 16 दिन जेल में गुजारे, तो मैं वहाँ जेल में मैं बहुत जाता रहा हूँ सोशल काम के लिए, लेकिन मैं कभी रहा नहीं हूँ। तो जब रहा तो मैंने पता चला कि ये कहाँ, तो मैं उनको भी एक वादा करके आया कि मैं प्रिजनर्स के लिए और जेल अथॉरिटीज के लिए भी एक बिल लाऊंगा इंशाअल्लाह, ताकि जो कैदी अंदर हैं उनका भी, जब मैंने मैं जाता हूँ, मलिक साहब को पता है, मैंने जेल में बड़ा काम किया, मैंने 15 साल पहले एक रोटी प्लांट लगाया, वो अभी तक चल रहा है। लेडीज हैं, वॉशिंग मशीन्स, बच्चों के लिए ये जो क्लास में है, लेकिन हमें एज ए जर्नलिस्ट रेगुलर उन लोगों की आवाज भी उठानी चाहिए जो जेलों में बेचारे, एक शख्स को मैं मिला, उसको 400 साल कैद हुई, और खान साहब ने कंकरेंट वो रात दिन जो कैद होती है वो खत्म कर दी है,
यानी कि आप 25 साल काटे फिर 25 साल और काटे, हालांकि वो कम करने में चलनी चाहिए। तो वो भी वादा किया, इंशाल्लाह उस पर आपकी मदद दरकार होगी। मैं चाहता हूँ वो उनकी कई लोग हैं जिनकी फैमिलीज नहीं है, पैसे नहीं है, कोई पैरवी करने वाला नहीं है, उसमें भी आपकी मदद दरकार है। वो भी इंशाल्लाह आपको जहमत दूंगा मैं। तो मैं आप सबका दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से आपने ये जद्दोजहद की। यकीन कीजिए पूरे पाकिस्तान में, मैं पूरे पाकिस्तान के मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। और शायद मैंने अपनी तारीख में अपने लिए बाकियों के लिए इतनी मीडिया की सपोर्ट पहले नहीं देखी। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ सबका। और आइंदा भी इंशाअल्लाह जो भी जद्दोजहद होगी, चाहे ये हो या कोई और आ जाए, ये तो मेरे ख्याल में शायद हफ्ते की 10 दिन की बात ही रही है। तो अब देखिए, मुझसे खफा किस बात पे थे कि सच ना बोलो। और अभी जो खफगी है वो ये है, वो कहते हैं सहाफत के साथ सियासत करता है। आप क्रिकेटर हैं, सियासत करते हैं, मैं सहाफत में सियासत नहीं कर सकता। और अगर मैं आपके लिए करूं तो अच्छा हूं, किसी और के लिए करूं तो मैं बुरा हूं। माल भी आप हमारा खाएं, चीजें भी आप हमारी इस्तेमाल करें, और आंखें भी आप हमें दिखाएं। अभी आपने एक दोस्त ने किसी ने जिक्र किया, वो एक साहब है, पहले तो मैंने कभी देखे नहीं थे, लेकिन इक़्तिदार है तो ऐसे लोग बिल्लों से निकल आते हैं। उसका तो मैंने कभी जवाब देना भी नहीं। लेकिन मैं हैरान हूं कि इक़्तिदार क्या चीज है कि आप सारी चीजें भूल जाते हैं और आपको इतना ज़ोम चढ़ता है कि मैं हर किसी को कुचल दूं। लेकिन अल्लाह का एक कानून है, इक़्तिदार सदा किसी के पास रहा नहीं। यहाँ वर्षा में इतने अरसे से हूँ, मेरे में 7वीं 8वीं का था। एक दिन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, दूसरे दिन टैक्सी को हाथ देते हैं, टैक्सी रुकती नहीं है। तो मैं इनको बतवा तो नहीं देता, लेकिन इनका मैंने जेल में कह के आया हूँ। मैंने कहा थोड़े दिनों बाद ये यहाँ ही होगा कि हम और यही आना होगा। और मेरी कोशिश होगी तब तक इन पुलिस वालों को मैं रखूं ताकि वही इसको भी लाए। ये मकाफाती अमल है। इन्होंने बहुत लोगों की बेइज्जती की। जो अल्फाज ये बोलते हैं वो इनके ओहदे के, इनकी उम्र को जेब नहीं देते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप एज के साथ अपने ओहदे की, सीट की रिस्पेक्ट के साथ बोलते नहीं हैं। लेकिन गद्दारा हुआ शख्स को कहते थे मैं इक़्तिदार को ठोकर मारता हूं। आज आप हालत देख लीजिए। और ये कहना कि जी मैं जमहूरियत, लंदन, स्कैंडिनेविया, रियासत मदीना, इसमें ऐसा होता है आप लोगों के ऊपर चीजें डाल दें, हीरोइन डाल दें, केसेस डाल दें, और फिर आप कहें जी मैं तहरीक इंसाफ और इंसाफ हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों को अपनी बातों पर गौर करना चाहिए। उसी हद तक बोलें जिस हद तक आप काम कर सकते हैं। मीडिया में अगर आपको कोई शख्स पिछली बात याद कराता है तो उसको सुनने का हौसला होना चाहिए। अगर आप काम नहीं कर सकते वो और बात है, लेकिन बोलने वाले की जुबान बंद करना मैं समझता हूँ उसको हम ना बर्दाश्त करेंगे, ना किया है और आइंदा नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह वो आवाज जो हमें बंद करना चाहेगी वो इंशाअल्लाह खुद बंद होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह दो खाने के लिए बाहर लॉन में तशरीफ ले आए।